Hello friends, I am your teacher Sunil Vaisar. I welcome you in today's lecture. Today we are going to solve one basic problem regarding investment accounting. In first lecture we talk about the basic concept of investment as like what is the investment, the types of investment, why people invest their money into particular security and like that. In the second lecture we talk about cum interest and ex interest, and now time came to solve the problem or play with the investment figures. Okay. So today I am going to take one very basic problem, okay, very easy. See, while solving the investment accounting problem, we have to prepare this ledger, the ledger investment accounting. Suppose while solving the problem of issue of share, we have to pass necessary journal entries, but in case of investment account, we as a student we need to prepare a ledger, and this is an investment accounting. Okay, debit, credit, debt, particular, face value, interest oblique dividend, capital value. Then again credit side same, debt, particular, face value, interest oblique dividend and capital value. Suppose investment is a debt security like a debenture, then we will use the interest. If the investment is in the form of shares, then we use the dividend. So dividend oblique interest. Clear? Okay. Now came here. This is a very important. This is a calendar line. What? This is a calendar line, and I promise you, you will not find this calendar line in any books. Okay, you will find this calendar line with only some teachers. So this is a calendar line. So friends, today's problem, I will read the problem in short and then we solve the problem. Okay, see what is the today's problem. Problem number 1. In the books of Shailesh Investment Trust Limited, we are going to solve this problem. 1st January 2014, opening balance of investment rupees 50,000, cost 47,500. Next, on 1st March 2014, company purchase face value of rupees 20,000, cum interest 5% discount. 3rd, on 1st July 2014, company sold face value 25,000, cum interest 2% premium. Number 4, on 1st October 2014, company sold face value of rupees 20,000 at par ex interest. And then number 5, 1st December 2014, company purchased face value 10,000 at 3% discount ex interest. And the very important, this is interest payable on 31st March and 30 September. So interest received 2 times in a year, means half yearly. पहला इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ होने के बाद, दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ होने के बाद. So what are the dates of interest? 31st March and 30 September. Okay, now come to the timeline. While solving the problem of investment account, we have to use this timeline. क्या करना है दोस्तों? पहले हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी है. लंबी सी लाइन खींचने के बाद हमें जो हमारे साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने हमें यहाँ पे कोट करना है फ्रॉम जैन टू दिसंबर. और हमारे ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर हमने जो दिया है, दैट ट्रांजैक्शन हैज टू बी शोन ऑन दिस कैलेंडर लाइन. बात समझ रहे हो क्या करना है? ये जो हमारे ट्रांजैक्शन है, अभी यहाँ पे जो 5 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं आपको, कुछ सेल्स के हैं, कुछ परचेस के हैं और इंटरेस्ट कब मिल रहा है उसके बारे में है. तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हमें यहाँ से उठाना है और ये कैलेंडर पे हमें क्या करना है, कोट करना है, शो करना है. ओके, while quoting this transaction on this calendar line, first thing that you have to remember, opening and closing. This is very important. Opening कब हो रहा है, closing कब हो रहा है, ये हमें देखना है. So in this problem, opening 1st January. कब है opening? 1st January. तो closing कब होगा 31st December. तो ये लिख देना है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ. जनवरी 1st ओपनिंग, 31st December क्लोजिंग. ओके, देन सेकंड हमें क्या कोट करना है,
डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें साल में कब इंटरेस्ट मिलता है। सो 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 31 मार्च, 30 सितंबर। सो मार्च यहां पे मुझे ढूंढना है, मार्च, और यहां पे मैं लिखूंगा 31 और मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट, मेरे ध्यान में लिए। ओके, देन व्हेन कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट आफ्टर 31 मार्च, कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 30 सितंबर। सो सितंबर कहां पे है, यहां पे है। आई स्क्वायर this September and write here September interest. Okay, right? What I did here, I quote the date of payment of interest on calendar line, then I quote here opening and closing. Now here some transactions about purchase and sales, so that purchase and sales I have to be quote on calendar line. So first देखो 1 जनवरी 2014 परचेस किया है, लिखूंगा यहां पे 1 जनवरी परचेस, 1 जनवरी परचेस। ये फर्स्ट लिखना है क्योंकि 30 जनवरी है, ये 1 जनवरी है, कंफ्यूज होता है, तो 1 जनवरी लिख दिया। देन सेकंड मेरा ट्रांजेक्शन है 1 मार्च। सो मार्च है मेरा यहां पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 मार्च, 1 परचेस, परचेस। थर्ड ट्रांजैक्शन मेरा 1 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, यहां पे लिखूंगा मैं परचेस, 1 जुलाई, सॉरी सेल, सेल। देन 1 अक्टूबर को सेल किया है, 1 अक्टूबर सेल एंड 1 दिसंबर परचेस। ओके, हो गया। क्या किया, पहली बात, पहले तो मैंने ये लेजर तैयार किया, उसके बाद आई ड्रॉ कैलेंडर लाइन, देन आई कोट माय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑन कैलेंडर लाइन, देन आई शो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैलेंडर लाइन, एंड देन आई कोट सेल्स ट्रांजैक्शंस एंड परचेस ट्रांजैक्शन ऑन दिस कैलेंडर लाइन। ओके, गेट इट? ओके, अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बात, I told you investment account is a which type of account? It is an real account. It is a real account. What is the real rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Purchase करते हैं तो debit में लिखेंगे, ध्यान में रखना। When we purchase, write to the debit side. When we sell, write to the credit side. So simple सा फंडा है बच्चों, ध्यान में रखने का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में परचेस करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, सेल करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस होगा तो असेट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, पता है, असेट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट मेरी असेट है तो उसका हमेशा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होगा, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। बात समझ रहे हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनवरी 2014 ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू उसका 50,000 है, लेकिन आज उसका कॉस्ट मार्केट में कितना है, 47,500 लिखेंगे यहाँ पे। 1 जनवरी 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू 50,000, इंटरेस्ट में अब तक कुछ नहीं, कितना है, कैपिटल वैल्यू 47,500। ओके, ओपनिंग लिख दिया, समझ रहा है। 1 जनवरी 2014 ओपनिंग बैलेंस 50,000, फेस वैल्यू में लिख दिया, और कॉस्ट जो है, मार्केट जो है, कॉस्ट उसका 47,500, आई राइट इनटू कॉलम कैपिटल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इफ डेट ऑफ ओपनिंग एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट सेम, देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। बात समझो, अगर आपकी डेट ऑफ ओपनिंग क्या है आपकी, 1 जनवरी, एंड देन व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, 31 मार्च, मीन्स डेट ऑफ ओपनिंग and date of payment of interest is not same. In this case we have to calculate accrued interest on opening balance. और अगर मेरा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 जनवरी रहता था
और मेरा ओपनिंग भी 1 जनवरी रहता था, तो नीड नॉट टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। बट बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग है और डेट ऑफ ओपनिंग कुछ अलग है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। वही बात आपके क्लोजिंग में भी है। अगर आपका क्लोजिंग की डेट और आपकी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, तो वहां पर भी आपको क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट निकालना होगा। चलो एक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिखूंगा, बाद में मैं रब करूंगा। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कब से कब तक, वो एक ऐड आता ना, कहां से यहां तक, तो कहां से कहां तक। तो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट, आज मैं कहा हूं टुडे आई एम ऑन 1 जनवरी 2014, राइट। आज मैं कहा हूं, आज मैं हूं 1 जनवरी 2014। तो मेरा लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो मुझे जाना होगा 2013 में। मैं यहां से पीछे आऊंगा, ठक, यहां पे मैं आता हूं, तो यहां पे कब मिला था मुझे लास्ट इंटरेस्ट, आई गेट इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2013 में। अभी मैं कहा हूं 1 जनवरी 2014 में। तो ये जो महीने है, कितने महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30 को मिला था ना, इसको छोड़ देंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो 3 महीने का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 टू 31 दिसंबर 2013। 1 जनवरी 2014 की अगली पिछली रात, पिछला दिन जो होता है वो होता है। तो कितना लिख लेगा, 50,000 इंटू 6%। 6% कहां से मिला, ये जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है, 6% है, इसलिए 6% 100। ये 2 जीरो गए और 2 जीरो गए, कितना हुआ, कितना आता है, 1000। पॉज करो। ओके, सो 50,000 फेस वैल्यू, उस पर 6% इंटरेस्ट निकालना है। तो 50,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 3,000। 3,000 इज फॉर, इट इज फॉर 1 ईयर। वी नीड टू ओनली 3 मंथ्स, वी नीड टू ओनली 3 मंथ्स। तो कितना आता है 3 मंथ का, यस 750। 750 हमारा आएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2014 टू इंटरेस्ट। मिला नहीं है, एक्रूड है, टू इंटरेस्ट। मिला होता तो अलग लिखते, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं, 715। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी मैं जनवरी में था, जनवरी से मैं आगे आता हूं, फरवरी में कुछ नहीं है, और मार्च में मैंने क्या किया है, परचेस किया है। मेरा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 31 मार्च है, लेकिन उसके पहले 1 मार्च को, 1 मार्च को मैंने क्या किया है, परचेस किया है। क्या परचेस किया है देखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। परचेस, कितना परचेस किया देखो, 20,000 और कम इंटरेस्ट 5% डिस्काउंट। यहां पे लिखता हूं मैं 5% डिस्काउंट। यहां पे लिखूंगा फेस वैल्यू 20,000 लेस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आएगा, 5%। यस, 5% डिस्काउंट कितना आता है, 1000। यस, 5% डिस्काउंट 1000, कितना बचेगा, 19,000। ओके, ये हुआ आपका मार्केट प्राइस। अभी इस पर क्या है, कम इंटरेस्ट है, वो कम इंटरेस्ट हमें क्या है निकालना है और उससे माइनस करना है। तो कम इंटरेस्ट कब से निकालना, लास्ट मुझे इंटरेस्ट कब मिला था, 30 सितंबर को। सो वहां से फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहां पे मैं रिटर्न आऊंगा, लास्ट मुझे कब मिला था, 30 सितंबर को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, कितना, 5 मंथ। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय
100 कितना हुआ? यस यस 1000 करो। ओके, सो 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है? 1200 फॉर ईयर, लेकिन वी नीड ओनली फॉर 5 मंथ। 5 मंथ क्यों भाई? लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट पेमेंट कब हुआ? 30 सितंबर 2013 को। मैं कहाँ हूँ अभी? 1 मार्च को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो 5 मंथ का कितना पड़ेगा? 500। साल का अगर 1200 है तो 5 मंथ का कितना आएगा? 500। सो यहां से ये 500 क्या होगा? माइनस होगा, कम इंटरेस्ट, और ये रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। परचेस किया है, लेजर पे लिखेंगे 1 मार्च 2014 टू बैंक। परचेस किया ना, टू बैंक। कितने का परचेस किया? यस 20,000। कम इंटरेस्ट कितना? 500 निकाला, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 18,500। बात समझ में आ रहा है? 18,500। ओके, नेक्स्ट अगेन जाता हूं मैं मेरे कैलेंडर लाइन पे। मैं 1 मार्च को था। 1 मार्च के बाद क्या आता है? 31 मार्च। और 31 मार्च को क्या होता है? 31 मार्च को क्या होता है? मुझे इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि भाई आज की तारीख में 31 मार्च को एट दिस पॉइंट हाउ मच इन्वेस्टमेंट आई हैव विथ मी। तो कितना है मेरे पास? ओपनिंग था 50,000 प्लस मैंने अगेन परचेस किया, कितना हुआ? 20,000। टोटल कितना हुआ? 70,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। कहां से कहां तक? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान में रखना हमेशा, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे क्या बोलने का? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आज मैं कहां हूं? आज मैं हूं 31 मार्च को। मुझे इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 6 मंथ का। यहां पे लिखूंगा मैं 1 अक्टूबर 2013 टू 31 मार्च 2014। कितना हुआ? 6 मंथ। कितना इन्वेस्टमेंट है मेरे पास? टुडे आई हैव विथ मी 70,000 इन्वेस्टमेंट। 6% डिवाइडेड बाय 100 से कितना हुआ? बेचा 4,200 फॉर ईयर। कितने मंथ का लेना है? ओनली 6 मंथ का। तो कितना होगा ये? 2,100। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिट में एंट्री करूंगा 31 मार्च 2014 बाय बैंक। क्या है ये बाय बैंक? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, कितना हुआ? 2,100। गेट इट? वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर 31 मार्च, अप्रैल में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं, मई में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं, जून में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई में 1 जुलाई में क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ट्रांजैक्शन है देखेंगे। 1 जुलाई 2014 सोल्ड 1 जुलाई 2014 में सोल्ड किया है। कितना है? 25,000। कैसे सेल किया? कम इंटरेस्ट था। ओके, नो प्रॉब्लम, कम इंटरेस्ट था और 2% प्रीमियम था, वो भी लिख देता हूं 2% प्रीमियम। ओके, देखो फेस वैल्यू 25,000, राइट। उसकी मार्केट प्राइस 2% प्रीमियम अगर जोड़ते हैं 2% कितना आएगा? 25,000 का 500, राइट। सो उसका मार्केट प्राइस होता है 25,500 और इसमें से हमें क्या निकालना है? कम इंटरेस्ट निकालना है, और वो कम इंटरेस्ट मुझे क्या करना है? उसमें से माइनस करना है। कम इंटरेस्ट है, माइनस करो। एक्स इंटरेस्ट है, ओनली कैलकुलेट करो और दिखाओ। ओके, सो कैलकुलेट करेंगे। देखो 25,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 100। ओके,
कितना होता है 250 इंटू 6 1500 राइट, बराबर 1500 राइट, 1500 इट इज फॉर 12 मंथ्स। हमें कितने मंथ्स का निकालना है, वही अपना पुराना फंडा, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब है, मार्च को, 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिला था, जिसकी एंट्री मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। मार्च के बाद मैं आगे निकला, मैं अप्रैल में आया कुछ नहीं था, मई में आया कुछ नहीं था, जून में भी कुछ नहीं था, जुलाई में मैंने क्या किया, सेल किया है। तो मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मार्च। तो मार्च छोड़ दिया पूरा, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने का, 3 महीने का मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, 3 महीने का कम इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना आएगा वो 375, और ये 375 मैं यहां से माइनस करूंगा 375, देन कितना बचेगा मेरे पास 25,125। अब देखो मैं यहां पे कैसे लिखता हूं उसको, कब बेचा भाई, 1 जुलाई 2014 को बाय बैंक, बेच दे तो पैसा आता है ना, बाय बैंक, वेरी गुड, बाय बैंक। कितने का बेचा, फेस वैल्यू कितना था 25,000, इंटरेस्ट 375, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी आई, कैपिटल वैल्यू कितना है 25,125। वेरी सिंपल, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, एक बार रिपीट करूं, सेल किया 25,000, कम इंटरेस्ट 2% प्रीमियम, फेस वैल्यू 25,000, प्रीमियम मिला के हुआ 25,500, देन माइनस किया कम इंटरेस्ट 375, और इन्वेस्टमेंट की कैपिटल वैल्यू रही 25,125। कम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, 25,000 पे 6% पे किया, 12 महीने का आया 1,500। 3 महीने क्यों लिए, क्योंकि मेरा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट था 31 मार्च, वहां से आज मैं हूं 1 जुलाई पे, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मेरा होता है 375, कम इंटरेस्ट है उससे माइनस किया और यहां पे दिखाया। क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 1 अक्टूबर 2014 सोल्ड किया है। ओके, 1 अक्टूबर को क्या किया है, सोल्ड किया है। मैं कहा था पहले जुलाई पे था, अगस्त में था का कुछ, अगस्त में कुछ भी नहीं, देन मैं आया सितंबर में। क्या होता है सितंबर में, बोलो क्या होता है सितंबर में, सितंबर में कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी इंटरेस्ट मिलने की बात आती है तो एट दिस पॉइंट स्टूडेंट हैज टू गेट कंफर्म हाउ मच इन्वेस्टमेंट टुडे आई हैव इन माय हैंड। ओके, सो मैं परचेस किया, मेरे पास ओपनिंग था 50,000, देन आई परचेस कितना 20,000, कुल मिला के कितना हुआ 70,000। 70,000 में से मैंने कितना बेचा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड कब 30 सितंबर को। देखो 50,000 का परचेस किया था, प्लस 50,000 ओपनिंग था, 20,000 परचेस किया, कितना हुआ 70,000, उसमें से बेचा फेस वैल्यू 25,000, कितना बचा, कितना बचता है 45,000 बचता है। इस 45,000 पे आज मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो वेरी सिंपल, 45,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है 2,000, यस 2,700, इट इज फॉर ईयर। और हमें कितने महीने का निकालना है 6 महीने का। क्यों निकालना है 6 महीने का, वही फंडा, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आज मैं कहा हूं 30 सितंबर, 30 सितंबर से पीछे जाना होगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। तो कितना हुआ, कितना होता है 1,350 फॉर 6 मंथ। तो लिखूंगा यहां पे 30 सितंबर बाय
बैंक 1350। ओके, गेट इट? फिर से दोहराऊं, इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 सितंबर, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 50,000, आई परचेस 20,000, कुल मिला के 70,000, उसमें से बेचा 25,000, बैलेंस अमाउंट 45,000, 45,000 पे 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट जो कुछ मिला है मुझे 1350, आई राइट हियर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मजा आ रहा है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 1 अक्टूबर 2014 सोल्ड, यहां पे हूं ना मैं, 1 अक्टूबर को क्या किया मैंने? सोल्ड किया। लिखता हूं यहां पे 1 अक्टूबर 14 सोल्ड। कितने का सोल्ड किया? 20,000 का सोल्ड किया। कम इंटरेस्ट था शायद, नहीं, एट पार और एक्स इंटरेस्ट। ओके, एक्स इंटरेस्ट था। देखो, एट पार मतलब 20,000 का 20,000 को ही बेचा, फेस वैल्यू 20,000, मार्केट प्राइस मतलब जो डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, एट पार है, मतलब 20,000 का 20,000 को ही बेचा, 20,000 को 20,000 को ही बेचा। और एक्स इंटरेस्ट, चलो एक्स इंटरेस्ट निकालते हैं। चलो, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कब हुआ मेरा ट्रांजैक्शन? सर मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है 1 अक्टूबर को, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 सितंबर एंड देन date of transaction 1st October. How much the difference? How much difference? Only 1 day. Okay, 30 September means 1st October. So there is no need to calculate the interest. सीधा आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखना है. So I'll write here on 1st October 2014 to sell by bank. सेल ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट में लिखेंगे by bank 20,000. इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 1st अक्टूबर एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 सितंबर. सो एक दिन का जो फासला है उसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. सो कैपिटल वैल्यू कितना आएगा? 20,000. ओके, 1st अक्टूबर से निकलते हैं हम तो कहाँ आते हैं? 1st दिसंबर को. और 1st दिसंबर को हमने क्या दिया लगाया था? तो 1st दिसंबर को हमने 10,000 का परचेस किया था. 3% डिस्काउंट एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. आई थिंक आप लोगों को समझ रहा है. 1st दिसंबर 2014 परचेस, कितना फेस वैल्यू था उसका? 10,000. ओके, मार्केट प्राइस डिस्काउंट था 3% डिस्काउंट. 10,000 पे 3% डिस्काउंट कितना होता है? 300, राइट? 300. ओके, लेस किया 9,700, राइट? 9,700 बराबर. यस, 9,000. ओके, 9,700. और इस पे हमें अभी क्या करना है? एक्स इंटरेस्ट निकालना है, राइट? सो जब हम एक्स इंटरेस्ट निकालते हैं तो ओनली कैलकुलेट करते हैं, इससे माइनस नहीं करते. ओके, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मतलब सिर्फ कैलकुलेट करते हैं और उसको इससे माइनस नहीं करते. ओके, सो 10,000 यहाँ पे लिखता हूं एक्स इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? 600, राइट? 600. और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? सितंबर. तो कितना होता है? अक्टूबर नवंबर, 2 महीने का. कितना आएगा? 600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 50 इंटू 2, 100. सो 100 लिखूंगा मैं परचेस में. देखो यहां पे लिखूंगा मैं 1st दिसंबर 2014 टू बैंक. कितने का परचेस किया? 10,000 इंटरेस्ट और उसकी वैल्यू 9,700.
अगेन समझाता हूँ शॉर्ट में। 1 दिसंबर 2014 को परचेस किया, फेस वैल्यू 10,000 था, डिस्काउंट पे परचेस किया 300, तो 300 माइनस हुआ, कितना हुआ 9,700, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट पे था, कौन सा इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट था। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जब एक्स इंटरेस्ट होता है तो हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, उससे माइनस नहीं करते हैं एज लाइक कम इंटरेस्ट। अगर कम इंटरेस्ट होता तो ये 100 रुपये में इससे माइनस करता, लेकिन अगर कम एक्स इंटरेस्ट है तो माइनस नहीं करने का, कैलकुलेट करने का। 10,000 इंटू 6 क्या है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। जो इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटी पे 6% पे रेट है 6%, तो साल का हुआ 600, तो 2 महीने का निकालना है, 2 ही महीने का क्यों, तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर, ट्रांजैक्शन हुआ है 1 दिसंबर को, इसीलिए 2 महीने का अक्टूबर और नवंबर 30 सितंबर 2 महीने का होता है, इसलिए वहां पे वो निकलते। पॉज करो, निकल। ओके दोस्तों, अभी पूरे जो कुछ ट्रांजैक्शंस थे वो ट्रांजैक्शंस हमने ले लिए हैं। अभी हम 1 दिसंबर के बाद नाउ हम आ रहे हैं 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लेजर का क्लोज करेंगे। ओपनिंग था, अभी 31 दिसंबर को हमके क्या करना है, क्लोज करना है। तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हमें समझना चाहिए कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो देखो अभी इन्वेस्टमेंट हमें देखनी है, कितने हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, बिफोर गोइंग टू, देखो हमारे पास टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000, देन मैंने परचेस किया 20,000, कितना हुआ 70,000, देन अगेन आई परचेस 10,000, कितना हुआ मेरे पास टोटल 80,000, राइट 80,000। बात समझ रहे हो, मुझे आज निकालना है कि भाई एट द 31 दिसंबर मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। ओपनिंग था मेरे पास 50,000, देन आई परचेस 20,000, देन आई परचेस 10,000, कुल मिला के मेरे पास है 18,000। उसमें से मैंने सेल किया, 2 बार सेल किया, एक बार किया मैंने 25,000 और एक बार किया मैंने 20,000, तो टोटल मैंने सेल कितना किया 40। तो आज मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है 35,000 इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में मेरे पास है। मैंने आपको बोला था इफ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ क्लोजिंग अगर सेम नहीं है तो हमें एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, और ओपनिंग क्या है 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। सो भाइयों और बहनों, ओपनिंग और क्लोजिंग की डेट्स अलग है और डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट अलग है, इसीलिए मुझे 31 दिसंबर को क्या करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा 35,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ओके, कितना होता है यस 350 2,100, राइट 2,100 इज इट फॉर ईयर। हमें कितना महीने का निकालना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हमें निकालना है। तो 2,100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना आता है 525, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है एक्चुअली वो 525, ओके। देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू का तो हमें पता है कितना है 35,000। पहले हमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालना, क्लोजिंग कैसे करना है बोलता हूं, पहले हमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालना, उसके बाद फेस वैल्यू वहां पे लिखना, और उसके बाद इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो हमें क्लोज करना है, इंटरेस्ट का कॉलम हमें क्लोज करना है। सो इंटरेस्ट का कॉलम ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, राइट। इसके अगर हम टोटल करते हैं तो हमें टोटल मिलेगी यहाँ पे 4,300
50 और इसमें से ये इंटरेस्ट अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3000। क्या है हमारा है 31 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझे? पहले क्या करना है, पहले एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है क्लोजिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है फेस वैल्यू के कॉलम में 35,000, देन इंटरेस्ट का कॉलम हमें क्लोज करना है। इफ वी गेट टैली दिस इज 4,350, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,350, उसमें से ये माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 3,000, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस है। देन हमें ये कॉलम क्लोज करना है और वो जरा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। तो कैसे क्लोज करेंगे देखो, ये जो 35,000 है आज मेरे पास, इसकी कैपिटल वैल्यू क्या है ये मुझे निकालना है। क्लोजिंग कैसे करते हो, आज मेरे पास ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल करके जो क्लोजिंग 35,000 बचे हैं, इसकी कैपिटल वैल्यू मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तब मेरा ये लेजर क्लोज होगा। तो मुझे कैपिटल वैल्यू उसकी निकालना है। कैसे निकलेंगे देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेस वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था 50,000, परचेस कितना किया और सॉरी ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000, उसमें से मैंने बेचा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीपो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें से जब मैंने बेचा 25,000, फर्स्ट टाइम मैंने बेचा 25,000, कितना बचा 25,000। नेक्स्ट मैंने बेचा 20,000, कितना बचा 5,000। मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्तों, नाउ आई एम ट्राइंग टू क्लोज दिस लेजर and I want to get what is the actual capital value of this 35,000 on today आज उसकी क्या वैल्यू है। सो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 50,000, देन आई परचेस देन आई सेल 25,000, बचा 25,000, देन आई अगेन सेल 20,000, कितना बचा 5,000। ओके, देन आई परचेस 20,000, उसकी कैपिटल वैल्यू मुझे पता है 18,500, देन आई अगेन परचेस 10,000, उसकी कैपिटल वैल्यू मुझे पता है 9,000। क्वेश्चन अभी आ रहा है कि ये 5,000 की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये 5,000 किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये 5,000 ये 50,000 को रिप्रेजेंट करता है। ये 5,000 किस में से बचे हुए हैं, ये 50,000 में से बचे हुए हैं। 50,000 में से पहले बार 25,000 बेचा, 25,000 बचा, अगेन 20,000 बेचा तो 5,000 बेचा। ये 5,000 किसका अंश है, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है, तो इसके रगों में ये 50,000 का खून दौड़ रहा है। तो इस 50,000 की उस टाइम पे जो वैल्यू थी, उस वैल्यू के अंदाज से आज 5,000 की वैल्यू निकालना है। कैसे देखो, 50,000 इज इक्वल टू 47,500, देन 5,000 बोले तो कितना क्रॉस करेंगे। ये जो 5,000 बचे हुआ है, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है, ये 50,000 का। तो 50,000 की वैल्यू क्या थी 47,000। इफ 50,000 इज इक्वल टू 47,500 on 1st January 2014, then on 31st December what is the value of 5,000। तो क्रॉस करेंगे, तो अगर हम उसका क्रॉस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिलते हैं 32,950। कैलकुलेटर पे कर लेना 32,950। और उसके बाद अगर हम इसकी टैली करते हैं तो वो आता है 78,075 और देन टैली करते हैं, अमाउंट निकालते हैं तो हमें सॉरी 70 सॉरी हाँ फेस वैल्यू 18,000, यहाँ पे 18,000 राइट। फेस वैल्यू अभी इसलिए लिखूंगा मैं यहाँ पे कैपिटल के कॉलम में भटक गया था 78,075।
और उसमें से अगर ये माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 2375। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बेसिक प्रॉब्लम। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा या गूगल क्लासरूम में डालूंगा तो ये प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, तो आराम से पढ़िए और कुछ प्रॉब्लम आता है तो कांटेक्ट करिए। सो बच्चों थैंक यू। आपको कुछ डाउट होता है तो वो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो सब उसका जो ब्यौरा है वो मिलेगा और आप डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।